morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi madhyamik vidyalaya Nashik. Here I am with the second lesson of the second unit, The Boy Who Broke the Bank, which is written by Ruskin Bond. It's a very funny story which is about rumors, how the rumors spread. The fact is, the story is about the main character Nathu, who is a sweeper with said Govindram's bank, but he didn't get the salary till the 20th of the month, and this fact is how this fact is turned and twisted into rumor. This fact is told by Nathu to Sitaram, the washerman's son. Washerman's son Sitaram told this fact to Mrs. Srivastava that my friend is in need of a job because said Govindram didn't pay him salary till the 20th of the month and he wanted to leave the job. And Mrs. Srivastava, how she spread this news into the rumor. Mrs. Srivastava told this fact by twisting it to Mrs. Bhushan, who was her friend. They met in the marketplace, and when Mrs. Bhushan heard about this, she just went in search of her husband to tell him this news. तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा कि मिसेस भूषण नाथू जो है इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस नाथू को 20 तारीख तक सेठ गोविंदराम के बैंक में सैलरी नहीं मिलती है, तो ये चिढ़कर वो अपने दोस्त को बताता है कि मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ. तो अपने दोस्त को जॉब मिले इसलिए वो मिसेस श्रीवास्तवा को सीताराम बताता है कि मेरे दोस्त को जॉब चाहिए क्योंकि वो सेठ गोविंदराम के साथ अभी काम कर रहा है और उसे तनख्वाह नहीं मिली है 20 तारीख तक. तो ये बात मिसेस श्रीवास्तव अपने दोस्त को बताती है, मिसेस भूषण को, कि सेठ गोविंदराम की बैंक की हालत तो लगता है ख़राब है क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट नहीं कर रही है. तो जैसे ही ये बात मिसेस भूषण सुनती है, शी जस्ट इमिडिएटली रैन फ्रॉम दिस प्लेस इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड इन द मार्केट प्लेस, एंड शी वॉज searching her husband. When he didn't meet her in a first way, what does she say? Look here. We are on page number 50. Look here. Nowhere, replied Mrs. Bhushan. Had you remained stationary in one shop, I might have found you. But you go from one shop to another like a bee in a flower garden. Don't start grumbling. The heat is trying enough. I don't know what's happening to People Nagar. Even the bank is about to bankrupt. What's that? Said Kamal Kishore, sitting up suddenly. Which bank? Mrs. Bhushan is in search of her husband. She's very angry. So she asked it, where are you? Where were you? She is asking to her husband. And he replied, nowhere. और वो कहता है मैं कहीं भी नहीं हूँ. मिस्टर भूषण कहता है, had you remained stationary in one shop, I might have found you. और वही उसे बोलता है कि you don't remain stationary in one shop that I might found you. Stationary means stable. आप एक जगह पे रुके रहना. You do not stay in one shop. You just go from one shop to another like a bee in flower garden. You are moving from one shop to another shop like a bee in flower garden. Flower garden में जो बी होती है ना, बी मतलब मधुमक्खी जो जैसी घूमती है एक फूल से दूसरे फूल की तरफ मधु ढूंढते वैसे ही तुम क्या कर रहे हो, यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर. तो जैसे ही ये बात कौन सुनती है, मिसेस भूषण, वो चिते डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, फालतू बातें मत करो, चिढ़कर बोल रही है वो, फालतू बड़बड़ मत करो. द हीट इज ट्राइंग इनफ. ऑलरेडी क्या है, इट्स वेरी हॉट, बहुत गर्मी है. आई डोंट नो व्हाट हैपन टू पीपल नगर. इवन द बैंक इज अबाउट टू गो बैंकरप्ट. और वो एक फैक्ट अपने मुंह में, वो पेट में जो गड़गड़ कर रहा था वो बता देती है. क्या आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर. पीपल नगर के साथ क्या हुआ है पता नहीं. इवन द बैंक इज अबाउट टू गो बैंकरप्ट. बैंक जो है पीपल नगर की वो भी क्या होने जा रही है, बैंकरप्ट. बैंकरप्ट मतलब क्या है, फिनेंशियली रुइन हो जाना. मतलब क्या है कि बैंक आर्थिक परिस्थिति उसकी पूरी तरह से खराब हो जाना, उसमें पैसा न बचना, उसको क्या कहते हैं, बैंकरप्ट कहते हैं. तो जैसे ही ये बात सुनता है कमल किशोर, तो वो कहता है व्हाट्स दैट, क्या हुआ. सेड कमल किशोर, सिटिंग अप सडनली, विच बैंक, कौन सी बैंक बैंकरप्ट हो गई. क्योंकि
किसी बैंक की हालत खराब होना, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और अभी देख रहे हैं कि सैलरी नहीं मिलने की वजह से ये बात कैसी फैलती जा रही है। चित्र में देखते हैं हम लोग। दिस इज अ पिक्चर ऑफ कमल किशोर फोटोशॉप। मिस्टर भूषण इज सिटिंग हियर। मिस्टर भूषण जो है वो यहाँ पे बैठे थे, ही वॉज सिटिंग हियर। दिस इज अ पिक्चर ऑफ Mr. Bhushan and Mrs. Bhushan. This is Mr. Kamal Kishore. Mrs. Bhushan told Mr. Bhushan that the bank is about to go bankrupt. बैंक जो है वो क्या होने जा रही, पीपल नगर की bankrupt होने जा रही है, मतलब दिवालिया निकलने वाला है उसका। तो जैसे ये बात कौन सुनता है, कमल किशोर सुनता है, तो वो पूछता है व्हाट, विच बैंक, कौन सी बैंक bankrupt हो गई है। आगे क्या होता है नेक्स्ट पार्ट। Why? The People Nagar Bank, of course. I hear they have stopped paying employees. Don't tell me you have an account there, Mr. Kishore. No, but my neighbor has, he exclaimed, and he called out over the low partition to, to the keeper of the barber shop next door. Deepchand, have you heard the latest? The People Nagar Bank is about to collapse. You would better get your money out as soon as you can. Look here. जैसे ही मिसेस भूषण इसे बताती है कमल किशोर को, द बैंक इज अबाउट टू गो बैंकरप्ट, तो मिस्टर कमल किशोर पूछता है विच बैंक। तो मिसेस भूषण कहती है इट्स अ पीपल नगर बैंक। व्हाई? द पीपल नगर बैंक, ऑफ कोर्स, पीपल नगर की बैंक। आई हियर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉयज, मैंने तो ऐसा भी सुना है दैट दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉयज, उनके जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी हैं, उनको उन्होंने पे करना स्टॉप किया है, पेमेंट देना बंद कर दिया है। डोंट टेल मी यू हैव अकाउंट देयर मिस्टर किशोर, मुझे मत बताओ तुम्हारा तो वहां पे क्या है, अकाउंट उस बैंक में, तुम्हारे तो पैसे होंगे। नो नो बट माई नेबर हैज, मेरा तो नहीं है, मेरे दोस्त का है, मेरा जो नेबर है ना बाजू में रहने वाला उसका है। ही एक्सट्रीम, वो जोर से बोलता है, एक्सट्रीम मतलब उद्गार निकालना, मन उसके एकदम सर्कमस्टांसेस चेंज होने की उसकी वजह से उसके मन से वो जो भाव निकलते वो एक्सक्लेमेशन है। एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर, और वो जोर से कॉल्ड आउट करता है जहां उसके शॉप के बाजू में लो पार्टीशन है। लो पार्टीशन मतलब एकदम नीचे से थोड़ा सा भाग है, एक दुकान से दूसरा दुकान जो जुड़ा हुआ रहता है ना, वो पार्टीशन डालते हैं, उस बीच में एक दीवार जैसा डालते हैं, और वो कैसा है, लो है। तो उस वहां पे उसका जो दोस्त है, कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर, कौन सा शॉप है वहां पे, बार्बर शॉप है, बार्बर मतलब बाल काटने वाला जो शॉप है ना, नाई की शॉप, नाई की दुकान है, तो नाई की दुकान में ये जोर से आवाज आवाज देता है, दीपचंद हैव यू हर्ड द लेटेस्ट, द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स, यू वुड बेटर गेट योर मनी आउट एज सुन एज यू कैन। क्या कहता है, दीपचंद हैव यू हर्ड द लेटेस्ट, क्या तुमने लेटेस्ट सुना है, लेटेस्ट मतलब अभी ब्रेकिंग न्यूज जिसे आजकल के जमाने में आप कहते हैं ना, वही। द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स, हमारी पीपल नगर की बैंक जो है वो कोलैप्स होने जा रही, कोलैप्स मतलब पूरी तरह से नष्ट होने जा रही है। यू वुड बेटर गेट योर मनी आउट एज सुन एज यू कैन, जितना जल्दी हो सके तुम्हारा पैसा जो उसके पास है ना वो निकाल लो। देखो इस पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि मिसेस भूषण told the fact that said Govindram is not paying or have stopped paying to his employees, it means that the bank's condition is not good, and this fact is told by Mrs. Bhushan to Kamal Kishore, and Kamal Kishore told this fact to his friend Deepchand who is a barber. कमल किशोर ये फैक्ट किसे बताता है, दीपचंद। कहानी कैसे मुड़ती जा रही देख रहे हैं आप, श्रीवास्तवा ने किसे बताया, मिसेस भूषण को, मिसेस भूषण ने किसे बताया, मिस्टर भूषण को, वहां पे कौन था, कमल किशोर था, कमल किशोर ने ये बात सुनकर वो किसे बताई, दीपचंद को, दीपचंद कौन है, बार्बर हैं। तो कहानी में से ये जो बात है फैक्ट वो कैसे ट्विस्ट होते होते आगे चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ Deepchand's shop. He is cutting the hair of his customer. Kamal Kishore, this is a picture of a Kamal Kishore. He told Deepchand that the People Nagar Bank is about to collapse. You can take out your money, whatever money you have. तुम्हारे पास जितना पैसा है बैंक में वो निकाल लो, क्योंकि बैंक अभी कोलैप्स होने जा रही, डूबने जा रही है। ऐसे कौन बताता है,
है। आगे क्या होता है जरा ध्यान देते हैं। Deepchand, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. The customer yelped with pain and distress. Pain because of the cut, and the distress because of the awful news he had just heard. With one side of his neck still unshaven, he sped across the road to the general merchant store where there was a telephone. He dialed Seth Govindram's number. The Seth was not at home. There was he then. Where was he then? The Seth was holidaying in Kashmir. Oh, was that so? The elderly gentleman did not believe it. He hurried back to the barber's shop and told Deepchand, "The bird has flown," said Govindram has left town. Definitely it means a collapse. And then he dashed out of the shop, making a beeline for his office and checkbook. क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। कमल किशोर ने दीपचंद से कहा कि द बैंक इज अबाउट टू collapse, you just take out your money। तो क्या होता है, दीपचंद who was cutting the hair of an elderly gentleman। दीपचंद जो है क्या करता है वो, what was he doing, he was cutting the hair of an elderly gentleman के वो हेयर काटता रहता है। was so startled, वो इतना स्टार्टल हो जाता है that his hand shook, उसके हाथ एकदम क्या हो जाते हैं, वो एकदम अचंभित होता है। स्टार्टल्ड होना मतलब अचंभित हो जाना। that his hand shook होना मतलब क्या, ट्रेम्बल होना, हाथ थरथराने लगते हैं। एंड ही निक्ड हिज कस्टमर्स राइट ईयर, और उस डर के मारे और उस अचंभे के कारण ही निक्ड हिज कस्टमर्स राइट ईयर। निक करना मतलब थोड़ा सा कट बैठ जाता है उसका, किसका, कस्टमर के जो राइट तरफ का जो कान है उसको थोड़ा सा कट बैठ जाता है। द कस्टमर येल्प विथ पेन, कस्टमर को जैसे थोड़ा सा कट बैठ जाता है तो कस्टमर येल्प मतलब जोर से चिल्लाता है। किसकी वजह से, एक तो पहले पेन की वजह से, पेन मतलब दर्द की वजह से, और दूसरा डिस्ट्रेस की वजह से, डिस्ट्रेस मतलब दुख की वजह से, बहुत जो बात हो गई है। तो पेन क्यों, बिकॉज ऑफ द कट, वो क्यों चिल्ला रहा है, दुख क्यों हुआ, उसका तकलीफ क्यों हुई है, क्योंकि कट लगा है उसके कान को। एंड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज ही हैड जस्ट हियर्ड, और डिस्ट्रेस क्यों हो जाता है, क्योंकि वो ऑफुल न्यूज आती है। ऑफुल मतलब बहुत ही भयंकर जो न्यूज है, न्यूज भयंकर ही है ना, कि बैंक कोलैप्स हो गई है तो ये न्यूज भयंकर है। उस न्यूज की वजह से वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रेस हो जाता है। विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेवन, उसकी एक साइड जो थी नेक की वो अनशेवन है। अनशेवन मतलब दाढ़ी वैसे के वैसे ये शेव हुई नहीं है उसकी। ही स्पेड अक्रॉस द रोड टू द जनरल मर्चेंट स्टोर। स्पेड मतलब स्पीड का थर्ड फॉर्म है। स्पेड अक्रॉस द रोड, रोड के उस कोने में वो पहुंच जाता है। कहाँ पे पहुंच जाता है वो, जनरल मर्चेंट के स्टोर पे। वेयर देयर वाज अ टेलीफोन, जहाँ पे उसे क्या मिलता है, टेलीफोन होता है। ही डायल्ड सेठ गोविंदराम्स नंबर, वो वहां पे क्या डायल करता है, सेठ गोविंदराम के बैंक को वो नंबर लगाता है। द सेठ वॉज नॉट एट होम, और उसे क्या मिलती है न्यूज कि सेठ घर पे नहीं है। वेयर वॉज ही देन, फिर वो पूछते हैं वो कहाँ गए। द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, हमारे सेठ जो है वो समर सीजन है तो फिर कश्मीर में हॉलीडे मनाने के लिए गए। हॉलीडेइंग मतलब छुट्टियां मनाने गए। ओह वॉज दैट सो, ऐसी बात है क्या। द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, उनका इस पर विश्वास नहीं हुआ। बिलीव करना मतलब विश्वास नहीं हुआ। ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप, वो भागते भागते किसके पास आता है, बार्बर के शॉप में। हरीड मतलब जल्दी जल्दी में आता है। एंड टोल्ड दीपचंद, और दीपचंद से क्या कहता है, द बर्ड हैज फ्लोन। बहुत अच्छी एक प्रोवर्ब लिखी है, देखो यहाँ पे, द बर्ड हैज फ्लोन, पंछी उड़ गया। सेठ गोविंदराम हैज लेफ्ट टाउन, सेठ गोविंदराम ने गांव छोड़ दिया है। डेफिनेटली इट मीन्स कोलैप्स, इसका मतलब है बैंक पूरी तरह से डूब गई, दिवालिया हो गई। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप मेकिंग अ बीलाइन फॉर ऑफिस एंड चेकबुक। एंड ही डैश्ड आउट का मतलब यहाँ पे क्या, जोर से भाग खड़ा हुआ, ऑफ द शॉप से निकला है। देखो अनशेवन है वैसा ही भागा है। मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक। बी लाइन मतलब सीधा, वो किसकी तरफ जाता है, अपने सीधा जाना ऑफिस की तरफ, क्योंकि उसे वहां से क्या लेना है, चेकबुक लेना है, क्योंकि अभी उसे सेठ गोविंदराम के बैंक में जितना सारा पैसा है वो उसे निकालना है, तो इसलिए वो वहां भागता है। तो इस पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा, देखो, व्हाट वाज दीपचंद डूइंग, he was cutting the hair of an elderly gentleman. When he heard the news, what happened to Deepchand, he was very startled.
When he was startled, what did he do? He nicked the customer's right ear, and customer yelped. Why customer yelped? Customer yelled because of the pain and distress. There were two reasons. Because of the cut, and distress because of the awful news that he had just heard. Then immediately he go to the general merchant shop and dialed to Seth Govindram. Seth Govindram, then he asked, where was Seth Govindram? But Seth Govindram was not at home. He was holidaying in Kashmir. So this elderly gentleman was not ready to believe this news. So immediately he come back to the barber shop and he told Dipchand that the bird has flown. पंछी उड़ गया है. द बैंक इज एब्सोल्युटली कोलैप्स. बैंक तो जरूर बैंक क्या हो गई है, कोलैप्स हो गई. एंड ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप मेकिंग अ बीलाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक. और अपने ऑफिस की तरफ, सीधा ऑफिस की तरफ भागता है, क्योंकि वहां से उसे क्या लेना है, चेकबुक लेना है. चित्र में आप देख सकते, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ barber's shop. This is Deepchand. This is elderly person. Deepchand is cutting the hair of the elderly gentleman. When he heard the news, जब दीपचंद को पता चलता है कि कमल किशोर द्वारा कि बैंक कोलैप्स हो गई है, तो वो इस जेंटलमैन के कान ही काट लेता है. और वो जेंटलमैन इतना क्या हो जाता है, अचंभित हो जाता है कि वो तुरंत भाग खड़ा होता है. और कहाँ पहुंच जाता है, सेठ गोविंदराम को फोन करने के लिए जनरल मर्चेंट स्टोर पे पहुंच जाता है. ही वॉज कॉलिंग कर रहा है वो. और जैसे उसे पता चलता है कि सेठ गोविंदराम इज हॉलिडेइंग इन कश्मीर, तो उसे पूरा विश्वास बैठ जाता है कि बैंक इज टोटली कोलैप्स. बैंक क्या हो गई है, कोलैप्स हो गई है. इट मीन्स इट इज बैंकरप्ट. तो कहानी किस प्रकार से मोड़ लेते हुए आगे गई, हम लोगों ने अभी देखा कि मिसेस श्रीवास्तवा बताती है, नाथू बताता है अपने दोस्त को कि मुझे सैलरी नहीं मिली है. सीताराम बताता है मिसेस श्रीवास्तवा बताती है मिस्टर भूषण से सुनता है. कमल किशोर मार्केट में, कमल किशोर बताता है दीपचंद को, वहाँ पे बैठा रहता है एल्डरली जेंटलमैन. और वो उस एक्चुअली जब वो पूछने जाता है कि बैंक की हालत कैसी है, पूछने के लिए जाता है, तो एक्चुअली जो सेठ गोविंदराम है, तो वो तो नेचुरल है, समर सीजन में घूमने के लिए निकल पड़े हैं कश्मीर में. तो जैसे उन्हें पता चलता है कि सेठ यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है बैंक क्या हो गई है, कोलैप्स हो गई है. तो अपने मन से वो बढ़ा चढ़ा कर कैसे बातें आगे बढ़ती जा रही है, हम लोग देख रहे हैं कि रूमर्स का रूप कैसे आगे आगे बढ़ता जा रहा है. आगे क्या हो रहा है, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे. तब तक थैंक यू.